Welcome students. Welcome to our biology class. Today's new chapter is human reproduction. In this chapter, today we are going to start a new topic, male reproductive system. Reproduction means reproduction. नए से production is called reproduction. Okay. In the reproductive system, there are two types of organ. Primary sex organ and secondary sex organ. Primary sex organ include testes in male and ovary in female. Primary sex organ, which are the primary sex organ? Testes in male and ovary in female are the primary sex organ, and other organ which are present in the reproductive system are called secondary sex organ. Understand? Now first of all we are going to see the male reproductive system. In a male reproductive system, it is divided into many parts. Pair of testes, it includes male pair of testes, which is a primary sex organ. Then accessory duct. Accessory duct means it is not mainly required for the main process of reproduction, but it is necessary for carrying the sperm to their destiny. Okay. Accessory ducts include retitestis, vas differentia, epididymis, ejaculatory duct. Then accessory gland, it is also not necessary, but it is accessory. Accessory gland, there are three types of accessory glands are there, and external genitalia. Okay. Then these testes are present outside the body in a male and in a pelvic cavity. This whole reproductive system is present in a pelvic cavity of the male, and the testis is present outside the body in a sac-like structure, and that sac-like structure are called scrotum. First of all, we will going to see the structure of scrotum. Okay. What is scrotum? Scrotum is a sac-like structure. What is scrotum? Scrotum is a sac-like structure in which testes are present. This sac is present outside the body. That means in between the two thigh in a male. Why this sac is present outside the body? What is the main function of this sac? The main function of this sac is to maintain temperature below body temperature. कितना बॉडी टेम्परेचर बिलो होना चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. इतना टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है अपना? 37 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, बट फॉर द नॉर्मल sperm production, that means the process of spermatogenesis, required lower temperature. That means near about 35 degrees Celsius temperature is required by the body for the production of the sperm, and that temperature is not given by the body inside the body. So testis is present outside the body in this scrotum. Okay. It is scrotum. It is a pouch of skin. Okay. And testis, pair of testis is present in that scrotum. ठीक. तो ये जो scrotum है, इसके अंदर यहाँ पर present होती है muscles. बाहर से है ये pigmented skin का बना हुआ. कैसे बना हुआ है ये? pigmented skin का बना हुआ है, और अंदर से है इसमें special muscle called as the Dartos muscle. Now
What is the function of that special dartos muscle? Contraction and relaxation. Why there is necessary for contraction and relaxation? In the summer season, when the body temperature is very high, then this dartos muscle relaxes. In summer season, dartos muscle relax and testis moves away from the body. And in the winter season, when the body temperature is low, then the testis moves towards the body, that means close to the body, by contracting the dartos muscle. मसल्स क्या करती है उस समय? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यूरिंग विंटर सीजन और ड्यूरिंग समर सीजन ये रिलैक्स हो जाती है. क्यों चाहिए हमें ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी? क्यों चाहिए? क्यों इतना टेम्परेचर कम चाहिए? फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स व्हाट? स्पर्म प्रोडक्शन. नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये कंडीशन जो है ये बॉडी में होती है. कब होती है फिर ये कंडीशन? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मेल चाइल्ड इनसाइड द यूटेरस. जब वो मेल चाइल्ड 7 मंथ का हो जाता है. कितना? 7th मंथ. तब ये जो टेस्टिस है, बिफोर दैट टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन. टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड द एब्डोमेन. जब बेबी 7 मंथ का हो जाता है तब वो टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में डिसेंड हो जाती है. क्या होती है? 7th मंथ में इसका डिसेंड हो जाती है. ये कहाँ से? एब्डोमेन से. कहाँ पर? ये क्या है? स्क्रोटल सैक. कहाँ पर डिसेंड हो गई वो? एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में. थ्रू व्हाट? थ्रू इंग्यूइनल कैनाल. इट इज कॉल्ड इंग्यूइनल कैनाल. ये कैनाल है जो एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक तक है. इस कैनाल से ये जो टेस्टिस है 7th मंथ में नीचे आ जाती है और फिर आफ्टर बर्थ वो वैसे रहती है. बट इन सम कंडीशन और इन सम केसेस ये जो टेस्टिस है डिसेंड नहीं हो पाती है एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में. ऐसे कंडीशन में उस बेबी में टेस्टिस तो है लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एब्डोमेन में. फिर वो बेबी कैसे होगा? स्टेराइल. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म. क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड ऑर्चिडिज्म मीन्स टेस्टिस. उसे कहेंगे हम हिडन टेस्टिस. दैट मीन्स टेस्टिस तो है बट वो कहाँ है? एब्डोमेन में. कहाँ होना चाहिए था? स्क्रोटल सैक में. अगर स्क्रोटल सैक में नहीं है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा क्या? नहीं. दैट मीन्स जिसको क्रिप्टोर्चिडिज्म है वो कैसे हुआ? स्टेराइल. वो कैसे हुआ? स्टेराइल. ओके, समझ में आया आपको? ठीक है. अब ये जो स्क्रोटल सैक है, ये स्क्रोटल सैक अंदर से इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? सेप्टम है. क्या है ये? सेप्टम. जिसकी वजह से इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बट एक्सटर्नली इट इज अ सिंगल पाउच. एक्सटर्नली स्क्रोटम इज अ सिंगल पाउच बट इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट. हर एक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है और ये जो टेस्टिस है यहाँ स्क्रोटल सैक में नीचे से होल्ड की हुई है एक स्पेशल मसल से एंड इट इज कॉल्ड एज द गुबर्नैकुलम. क्या कहेंगे हम इसको? गुबर्नैकुलम. ताकि टेस्टिस अपने जगह से हिले नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? गुबर्नैकुलम, जिससे ये अपने जगह पर फिक्स है. ठीक है. अब और क्या क्या नीचे आया थ्रू इंग्यूइनल कैनाल? क्या क्या आया है नीचे? ये टेस्टिस के साथ आया है स्पर्मेटिक कॉर्ड. क्या आया है? स्पर्मेटिक कॉर्ड. अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये एक मसल से घिरा हुआ है. स्पर्मेटिक कॉर्ड है, देन नर्व है, ब्लड वेसल्स है, नर्व, ब्लड वेसल. ठीक है. ये सभी
एक मसल से घिरे हुए हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द क्रीमास्टर मसल। कौन सी मसल है ये? क्रीमास्टर। टोटल हमने यहाँ पर कितनी मसल देखी? 2। कौन सी? वन इज द क्रीमास्टर एंड सेकंड वन इज द डार्टोस। तो ये जो दोनों मसल है, दोनों मसल हेल्प करती है टेस्टिस को अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए, टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, किसके? ये स्क्रोटल सैक के। इस तरह से, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है नीट में। इंग्यूइनल कैनाल भी पूछा जाता है नीट में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन के क्या क्या एट द 7th मंथ डिसेंट होता है, क्या क्या डिसेंट हुआ टेस्टिस, टेस्टिस के साथ क्या डिसेंट हुआ? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इट इज नथिंग बट द एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? नाउ हम लोग डिटेल में देखेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो है एक्सटर्नली कवर्ड होती है ये ट्यूनिका, ये 3 कवर है इसको, टेस्टिस को 3 लेयर्स से कवर होती है, 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग। कितने कवरिंग है इसमें? 3 लेयर है कवरिंग के। बाहर से है इसको ट्यूनिका वजाइनालिस, देन उसके बाद में ट्यूनिका अल्बिजेनिया और देन ट्यूनिका वस्कुलरिस। ठीक है, तीनों को मिला के बोलते हैं ट्यूनिका। ठीक है, तीनों मिला के, तीनों कवरिंग को क्या कहते हैं? ट्यूनिका। आउटर इज ट्यूनिका वजाइनालिस, मिडल इज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया एंड इनर वन इज ट्यूनिका वस्कुलरिस। ठीक है, अब ये जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है, ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया अंदर तक गया है और अंदर जाके इसने टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कई सारे कंपार्टमेंट्स बना दिए। अंदर इसने टेस्टिस के क्या बना दिए? इस तरह से कई सारे कंपार्टमेंट्स बना दिए। किसने बनाया? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ने इसे कई सारे कंपार्टमेंट बना दिए। हर एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं हम लोग लोब्यूल्स। क्या कहेंगे हम इसको? लोब्यूल्स। ऐसे कितने लोब्यूल्स हैं? ये अबाउट 250 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस में यहाँ पर 250 लोब्यूल्स है। इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कहते हैं। और हर एक लोब्यूल में, अगर हम लोग इस लोब्यूल को ऐसे बाहर निकाल के देखेंगे तो हर एक लोब्यूल में 2 to 3 लाइक दैट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, हर एक लोब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि मेन साइट है प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोगों ने सेक्शन में लिया। ठीक है, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हमने कट किया तो ये अंदर से इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी जो लेयर है ये बनी है जर्माइनल एपिथेलियम। और बीच बीच में यहाँ प्रेजेंट है सर्टोली सेल। ठीक है, समझ में आया? क्या बताया कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस कवर अप है 3 लेयर से। कौन सी 3 लेयर है? वजाइनालिस, अल्ब्यूजिनिया, वस्कुलरिस। जो अल्ब्यूजिनिया है वो अंदर तक गई है, अंदर जाके उसने टेस्टिस को डिवाइड किया है लोब्यूल्स में। टोटल हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर देयर? 200 to 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर एंड इट इज कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हर एक सेमिनिफेरस
tubule is lined by the germinal epithelium and Sertoli cell. जो germinal epithelium है that is the main part which is required for the production of the cell. यही epithelium की सेल जो है वो sperm बनाएगी, ठीक है। और Sertoli सेल का दूसरा नाम है नर्स सेल। ये क्या करेगी? नर्स करेगी, नर्सिंग करेगी, जो कि स्पर्म बनेंगे उसको नर्सिंग करेगी। इसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल। ये कौन सी सेल है? इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल जो है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, दैट इज अ मेल हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? इंटरस्टिशियल सेल। एंड्रोजन हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है? इंटरस्टिशियल सेल। ठीक, इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि होगी इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कहाँ से स्टार्ट होगी? जर्मिनल एपिथेलियम से, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके।